everyone, so welcome back to our channel Maths Parsala with Ankita. So yesterday we have started a new chapter linear equation in one variable and we have done its introduction as well as the exercise 2.1 question first up to 6 questions, right? So we have to start it from question number 7. So question number 7, x equals to 4.5 x plus 10. X plus 10. Okay, so x equals to 4/5 into x plus 10. सो आप क्या कर सकते हो, सिंपली हमारे पास ये डिवाइड में है, डिवाइड आपको किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में. सो दिस विल बी 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 10. अब ये आपका किस फॉर्म में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका, a विल बी मल्टीप्लाई बाय b प्लस a इंटू सी. सेम प्रोसेस यहाँ करना है आपको. सो दिस विल बी 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 4 टेन्स आर 40 आपके पास आ चुके हैं. अब हमें क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल है आप उसको एक साइड लेके आ सकते हैं, जो भी कांस्टेंट है उनको आप एक साइड रख सकते हैं. सो हमारे पास वेरिएबल है 5x एंड 4x. ओके, x जो है आपका वेरिएबल, तो आप क्या करने वाले हो, टर्म्स को ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, सो 5x ये आपका प्लस में है, सो दिस विल बी माइनस 4x इक्वल्स टू 40. ओके, इक्वल्स टू 40. सो 5x माइनस 4x, this will be x equals to 40. What will be the next step? Next step क्या होता है, you have to check out the result. Result हम यहाँ चेक कर लेते हैं. x equals to 4/5 x plus 10. Just put the value of x. That will be 40 equals to 4/5, 40 plus 10. So this will be 40, 4/5, this will be 50. Okay. So ये हो गया आपके पास 40 equals to 5 10s are 40. देखो आपका ये किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है. ओके, इसका मतलब है 5 आप 4 से भी डिविजिबल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, 50 से भी डिवाइड कर सकते हो. सेम प्रोसेस में 5 1s are 5, 10s are 40. You get 4 into 10. So final answer will be 4 into 10 means 40. That means it is correct. Okay. Next part, 2x upon 3 plus 1 equals to 7x upon 15 plus 3. राइट. ओके, सो अब सेम प्रोसेस क्या करने वाले हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपको उनको एक साइड लेके जाएंगे, कांस्टेंट को हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं. सो दिस विल बी 2x अपॉन 3. आपका प्लस था, दिस विल बी माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, ये आपके सेम प्लेस पे है, सो देयर विल बी नो चेंज इन इट्स साइन. दिस विल बी 3 प्लस है आपका हो जाएगा माइनस 1. ओके, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 15. सो 3 5s are 15, 5 times, so you have to multiply it by 2. 5 2s are 10, so 10x minus 15 1s are 15, so you have to multiply it by 1. 7 1s are 7 is equals to 2. Okay, so this will be 3x upon 15 is equals to 2. So यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x is equals to, या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसको ट्रांसफर कर सकते हो. ओके, हम कैंसिल आउट कर देते हैं. सो दिस विल बी इजी फॉर यू. 3 1s are 3, 3 5s are 15. So x upon 5 is equals to 2. What will be the value of x? 5 जो है वो डिवाइड में है, so you have to क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करने के बाद में it will convert it into multiply. So this will be 2 into 5. X equals to 10. Your final answer is x equals to 10. Again you have to put the values here. 2x upon 3 plus 1 is equals to 7x upon 15 plus 3. Right? So this will be
10 plus 1 is equals to 7 into 10 divided by 15 plus 3. So this will be 20 upon 3 plus 1. This will be 70 upon 15 और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 2s are 10, 5 3s are 15. Okay, so 7 2s are 14 upon 3 plus 3. Just take 1 here in the both side. Okay, now take an LCM. This will be 3 20 plus 1 3s are 3, so here this will be 3 again 3 14 plus 9, so this will be 23 upon 3. 14 plus 9 means 23 upon 3. Both are same. That is, it is correct. Okay, do the next part. Next part, question number 9. 2y plus 5 upon 3. Is equals to 26 upon 3 plus y. Okay, minus y. So आपको जितने भी वेरिएबल्स हो एक साइड पुट कर सकते हो, कांस्टेंट आप वहां लेके जा सकते हो. So this will be 2y minus this will be plus y is equals to ये same place पे रहेगा, so there will be no change in sign. This will be minus 5 upon 3. So 2 plus 1 3y. Okay, take an LCM 3 26 minus 5. So this will be 3y is equals to 21 upon 3. Right? So 3 7s are 21. This will be okay, 3y equals to 7. So y equals to 7. आपने क्या किया यहाँ पे 3 मल्टीपल में है, so this will be converted into divide. Okay, so y is equals to 7 upon 3. Next step होगा आपका वैल्यूज वहां पे पुट कर सकते हो डायरेक्ट. So 2y plus 5 upon 3 is equals to 26 upon 3 minus y. 2 into 7 upon 3 plus 5 upon 3 is equals to 26 upon 3 minus 7 upon 3. Okay. तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको. दिस विल बी 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 minus 7 upon 3. Take LCM. This will be 3 14 plus 5 as it is. This will be 3 26 minus 7. Okay, so this will be 19 upon 3. This will be 19 upon 3. Both are same. Okay. So next one and the last part of your question number first. Next is 3m is equals to 5m minus 8 upon 5. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स उनको एक साइड में कर सकते हैं. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम राइट साइड में लेके जा सकते हैं, इसको हम लेफ्ट में. क्योंकि ऐसा ये नेगेटिव आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. आपको पता है कि एडिशन ज्यादा बेटर रहता है, सिंपल रहता है. तो सेम चीज हम क्या करने वाले हैं, इसको ये माइनस में दिस विल बी प्लस 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5m. ये प्लस में दिस विल बी माइनस 3. ओके, सो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2m. राइट. सो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वेरिएबल रखना है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट आपको मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड जैसे बताया था, एलिमिनेट कर सकते हो. सो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे. सेम प्रोसेस में इसको भी 2 से डिवाइड करना. अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब ये इसके मल्टीप्लाई में होगा. हमने क्या देखा अभी कि 2 था आपके पास वेरिएबल के साथ में, सो हमें उसको डिवाइड करना है 2 से. बट हमने ये चीज देखी थी आपकी स्टार्ट किया था चैप्टर जैसे ही कि जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो सेम चीज आपको करनी है लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी. किसी नंबर को ऐड कर रहे हो तो सेम चीज हमने किया था इन द बोथ साइड्स. तो हमें दोनों साइड सेम प्रोसेस करना होता है. लाइक हमने अगर यहाँ डिवाइड किया तो सेम आपको लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा. बट डिवाइड किया है तो इसके तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही है.
So 2 4s are 8 and 2 से 2 डिवाइड किया, दिस विल बी 4/5 इज इक्वल्स टू m. m की वैल्यू जो है आपके पास 4/5 आ चुकी है. योर नेक्स्ट स्टेप इज 3m is equals to 5m minus 8/5. 3 4/5 is equals to 5 4/5 minus 8/5. So अब 4 3s are 12/5. ओके, 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास हो गया है 4 माइनस 8/5. एलसीएम ले सकते हो, दिस विल बी 12/5. एलसीएम विल बी 5 5 4s are 20. 20 minus 8, this will be 12/5. Okay, so we have done your exercise 2.1. Your next topic is reducing equation to the simplest form. आपकी जो भी इक्वेशन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मीन्स जितना आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जितना उसको आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितना सिंपल बना सकते हो उसको सिंपल बनाना है. ओके, okay, your example number 16. Example number 16. 6x plus 1 upon 3 is equals to plus 1 is equals to x minus 3 upon 6. x minus 3 upon 6. Okay. सो फर्स्ट आपको सेम प्रोसेस हम कर लेते हैं. 1 जो है आपका वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं डायरेक्ट. ओके, 1 आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो. सो दिस विल बी 3. ओके, ये हो गया आपके पास में 3 आपने किया, एलसीएम लिया, दिस विल बी 6x plus 1. 1 3s are 3. सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू x minus 3 अपॉन में 6. So this will be 6x plus 4 upon 3. x minus 3 upon 6. अब आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रांसफर कर सकते हो. ये डिवाइड में है, आप इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हो. राइट, जो डिवाइड में था आपके पास उसको आप मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हो. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 2 से डिवाइड आपका 3 से डिविजिबल था ये. So this will be 6x plus 4 is equals to x minus 3 डिवाइड बाई 2. अब हम क्या कर सकते हैं, आपका 2 जो है उसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो इजीली मल्टीप्लाई हो सके. राइट, ताकि वो इजीली मल्टीप्लाई हो सके. सो आपने क्या किया, डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाना. बट याद रखो ना, आपको नोटबुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है इसको. हमारे पास क्या होता है, डस्टर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं. बट आपके पास में पेन होता है, आप हर जगह व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते हो. सो याद रखना, आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप करना है. जैसे मैंने बताया वो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है. नेक्स्ट आपको क्या है, 6 2s are 12x plus 4 2s are 8 is equals to x minus 3. सो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे. अब क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि आपके वेरिएबल को एक साइड में रखोगे और जितने भी आपके कांस्टेंट है उनको एक साइड रखना है. तो ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस 3 था, प्लस 8 जो है वो माइनस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, सो दिस विल बी 11x इक्वल्स टू 8 माइनस 3. माइनस माइनस प्लस होता है, सो 8 and 3 11 एंड साइन जो माइनस का लगेगा. नेक्स्ट स्टेप आपके पास आया है x इज इक्वल्स टू, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इजी रहेगा आपके लिए. हम दोनों साइड उसको 11 से डिवाइड कर देते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे भी आपके पास 1 बचेगा. राइट, सो x इज इक्वल्स टू -1. x जो है वो आपको -1 हो जाएगा. इज इट क्लियर? अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट में आपका था कि यू हैव टू चेक आउट द रिजल्ट ऑल्सो. रिजल्ट भी चेक करना था, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसको जितना सिंपल मीन्स यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे. इज इट क्लियर? Okay, so next question, next example number 17. Example number 17, 5x minus 2 bracket 2x minus 7 is equals to
2 into 3x minus 1 plus 7 upon 2. Okay, this is the example number 17 according to your NCERT book. नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू जस्ट सॉल्व आउट ब्रैकेट, उसको एक इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। जितने भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम उसको क्या करने वाले, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एंड लास्ट स्टेप इज यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट। So this will be 5x minus 2 2s are 4x। याद रखना जो भी नंबर है वो नंबर से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल उसके साथ आ जाते हैं। सो दिस विल बी 2 2s are 4 and x। अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साइन का। साइन का ध्यान कैसे रखोगे, यहाँ था प्लस, सो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया, आपके पास माइनस आ गया, राइट। आपने लिखा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 2 को x से, दोनों एक ही टर्म में है आपकी, 2x जो वो एक ही टर्म में, तो एक के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4x हो जाएगा, 2 2s are 4 एंड x आ गया आपके पास। नेक्स्ट माइनस को माइनस से भी तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सो दिस विल बी माइनस माइनस मीन्स प्लस। अब क्या करना है नेक्स्ट आपके पास में, 2 7s are 14, 2 7s are 14, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अपने -2 को पहले 2x से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस आ गया आपके पास, एंड 2 2s are 4 एंड x आ गया। अब -2 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2s are 14। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट आपको सेम प्रोसेस करना है, 2 को करोगे 6x आ गया, -2 को करोगे 1 से, दिस विल बी 2 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, वेरिएबल एक साथ रखो आप, और जितने कांस्टेंट है उनको एक साइड रख सकते हो। सो दिस विल बी 5x minus 4x, ये प्लस में था -6x। ओके, वेरिएबल हमने एक साइड रखा है, ये था -2 प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 14 है, सो दिस विल बी -14। ओके, दिस विल बी -14। सो ये हो जाएगा आपके पास x minus 6x is equals to 7 अपॉन 2। मैंने क्या किया, इन दोनों को आप ऐड कर दो, सो दिस विल बी इजी फॉर यू। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन आपको माइनस का लगेगा, सो दिस विल बी 16। 14 प्लस 2 16। ओके, अब सेम प्रोसेस क्या करना है, प्लस में एक माइनस है, प्लस माइनस मीन्स माइनस हो जाएगा, 6 से आपने 1 माइनस किया, यू विल गेट 5x, और वो भी माइनस का ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका साइन यूज होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 2, तो दिस विल बी 7 minus 16 2s are 13, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5x is equals to, when you subtract 7 from you will get -25 upon 2, right? You can cancel out this, अगर दोनों तरफ आपको माइनस है सो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या कर सकते हो, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, सो दैट आप उसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, सेम यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास x बचा है 5, 5 are 25, so final answer will be 5/2। Is it clear? Okay, so we have done your 2 examples, example number 17 and example number 16 and 17. Okay, your exercise 2.2, question number first, solve the following linear equation। आपके पास एक linear equations दे रखी है, कुछ उनको solve करना है। सेम प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 2.2 बिल्कुल आपके एग्जैक्टली सेम है। वहां पे बस इक्वेशन आपको छोटी दे रखी थी, और यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा आपको क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है। बिल्कुल इजी है, कोई आपके पास कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो आप एलिमिनेशन मेथड करते थे वो यहाँ पे कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना होता है लास्ट में, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द लास्ट पार्ट, राइट। आपको लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सेम आपको यहाँ पे करना है एक्सरसाइज 2.2। Question number first, solve the following equation, following linear equation. First part is x upon 2 minus 1/5
इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ओके, अब आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है। फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, फ्रैक्शन हमने देखा ना, रैशनल नंबर हमने लास्ट में पढ़ा था। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आपका नेगेटिव नहीं होता है, रैशनल नंबर आप उसको नेगेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं। फ्रैक्शन 1/4 1/5 यहाँ पे गिवन है, उसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। ठीक, आपके पास दो वे है यहाँ पे, या तो वेरिएबल्स को एक साइड रख सकते हो, कांस्टेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। जो भी आपको मेथड सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एलसीएम के थ्रू कर लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 5s are 10, so 5 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 5x, अगेन 5 2s are 10, 2 टाइम्स है so 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी अगेन 4 3s are 12, 12 आपका एलसीएम आ गया। 3 4s are 12, हमने क्या किया था, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम से आप डिवाइड करोगे, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। सो 3 4s are 12, 4 आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई करोगे x से, सो 4x प्लस 4 3s are 12, सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपके पास 3। अब क्या कर सकते हैं, आपके पास ये डिवाइड में है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। चलो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। सो ये हो जाएगा 12, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे ये 10 आपका डिवाइड में था, यहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है। आप इसको यहाँ लिखो बोथ आर सेम, और मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, आप उसको सिंपली लिख सकते हो 12। इसका अंडरस्टैंडेबल होता है ये बिल्कुल कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 12 5s are 16, x माइनस 12 2s are 24। ओके, नेक्स्ट आपके पास 40x प्लस 30, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स आ चुके हैं आपके पास में, दिस विल बी 60x माइनस 40x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 24। मैंने क्या कैसे ट्रांसफर किया इसको, दिस विल बी 20x इज इक्वल्स टू 54। सो x इज इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 20 से डिवाइड कर सकते हो आप, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आई है x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई 20। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 10s are 20, 2 2s are 4, 2 7s are 14। सो फाइनल आंसर विल बी 27/10। ओके, अब हम दूसरे वाला फॉर्म में देख लेते हैं। ये हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने उसका एलसीएम लिया, उसके बाद उसको सोल्व आउट कर दिया था, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करने के बाद आपका आंसर आया 27.10। हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, जो भी वेरिएबल हम उनको एक साइड लेके आ सकते हो, ये प्लस में है, दिस विल बी माइनस x/3, ये 1/4 माइनस में है, दिस विल बी प्लस 1/5। सो 3 2s are 6, अब एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा आपको, 3 2s are 6, 2 3s are, so this will be 3x minus 2x is equals to 5 4s are 20, this will be 5 plus 4, right। so यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में x/6 is equals to 9/20, 9/20। so ये हो जाएगा 9/20 डिवाइड जो था ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 10s are 20 and 9 3s are 27/10। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल लगता है, जो इजी लगता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट।